नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजपूत आपका स्वागत करता हूँ। आज गुड़गांव के ऑटोमस हॉस्पिटल में दो लोगों का लंग्स और हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। जानेंगे किस प्रकार रही ये यात्रा, किस प्रकार उनको जीवन दान मिला और क्या क्या चुनौतियाँ थी इस पूरे कार्यक्रम के। Questions regarding your insurance pays for transplants. For international patients, right now we are working with the Ministry of Commerce with FICCI and CII to create insurance portability. So if you are an international patient and you have an international insurance, not just for transplants but for all treatment abroad, insurance portability. So if you are covered for X amount in America, say for $10,000, so they will extrapolate and maybe cover you for $7,000 in India, and we are working on that. That is still a work in progress. But having said that, if you see a transplant in United States is prohibitively expensive, or anywhere else, even for Southeast Asia. And if you are going, and if there is a slight bit of morbidity and you have an overstay and so on and so forth, a lot of co-payment has to be done by the patient who is undergoing it, which is not the case in India, because the costs are, I would say 1/10, 1/20th, and even if there is a co-payment issue, it is a small fraction of what people are doing. So people are more and more people. I'm not just talking about heart lung, I'm talking about bone marrow, I'm talking about a whole lot of other of these things, where now people from Scandinavian countries, people from Canada, where there's a long queue for all of this and prohibitively expensive with the co-payment system, they're looking at India as an option, because the expertise is here, the cost-benefit thing is here, and outcomes have been phenomenally well. So a large chunk of people now from Scandinavian countries, from Canada, early people from United Kingdom, because United Kingdom and USA, they do not so far allow people to go and get treated abroad. They do not get their medical claim. But people on their own are also, they feel the co-payment part is much higher than if they just pay out of their pocket and get it done in India, right? So a lot of shift and movement is happening, and the government is also realizing that this is a soft power where India can easily, so we are in the top 10 in medical value travel, and the idea is, and the push is to become the top 3, if not top 1. And especially in high-end surgery. And secondly, medical tourism is happening under the Prime Minister's vision, and you said even the Health Minister. So medical tourism, we've seen that there are people who are settled in, say, US, not the NRIs. The NRIs, जो Indian settled हैं वहाँ पे, they come to India to get themselves operated, say knee transplant, because fraction of a cost पे हो रहा है. But then my thing is like, suppose I am a US citizen, right? And I am earning in dollars. So, we cannot compare a dollar to a rupee. You understand me? So I say, and is it then included in the Mediclaim? Does the transplant, anybody who's, like suppose Pushpendra is there, so was it in a Mediclaim? Yes. And how does it work? So basically, हम उनके मुकाबले क्या उसको सस्ता दे पाएंगे, अच्छा रहेगा? डेफिनेटली, क्योंकि हमारी सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है. जैसे डॉक्टर बिस्वा है, मैं भी बाहर से ट्रेनिंग लेके आई थी, फिर हमने किम्स में भी जाके ट्रेनिंग की है. तो हम जो फॉलो करते हैं वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस, और जो हमने इंडिया में रह के देखा है कि हमारी इंडिया में चैलेंजेस क्या हैं, उसको हमने अपने इंटरनेशनल और नेशनल गाइडलाइंस को मॉडिफाई किया है, जो हम अपने पेशेंट्स पे लागू करते हैं. डेफिनेटली हम वही रिजल्ट्स ला पाएंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं. The donors are also ensuring that the families are well taken care of, especially when their relatives are unwell and have undergone a serious life-threatening head injury or a stroke, through expert care and coordination. And it is only when all their efforts turn futile do they continue to harness the power of organ donation and contribute to this massive gap that we have in the country between those suffering from end-stage organ. जब तक ये प्लेज हम लोग नहीं लेंगे तो शायद ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पहला कदम ही नहीं हो पाएगा.
शायद हम बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं, मगर हम ही कर सकते हैं, इंसान ही दूसरे इंसान की मदद कर सकता है। जब ये पेशेंट हमारे पास आईसीयू में आते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन का और बाकी और भी चीज़ें होती हैं। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए जो हमने जो मेजर्स लिए, जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, दैट वाज एक्सेलेंट। हमारे लिए सब कुछ नया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम ये नया प्रोग्राम कर रहे थे। बट जो सब ने मिलके जो चैलेंजेस फेस किए और प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए, बाकी हमारी और सपोर्ट टीम, फिजियोथेरेपी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत मदद की और जिसके कारण से हम इन्फेक्शंस और इन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाए। हमें कोई ऐसे चैलेंज आए ही नहीं, क्योंकि हम इतने स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे। और फैमिलीज़ के लिए बड़ा ही अप्रीहेंसिव होता है। फैमिली को लगता है कि यार ये हमारा ट्रांसप्लांट हुआ है और हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हम वी वर मेकिंग श्योर कि एवरी डे वी आर टॉकिंग टू देम, स्पीकिंग टू देम, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। जैसे मैं बताऊं कि किस तरह से हमने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। जैसे अगर आपका कोई लंग ट्रांसप्लांट होता है, बॉडी के अंदर लंग जाता है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती है कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। ये नॉर्मल है, एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मेडिसिन देनी होती हैं, जिनको हम इम्यूनोसप्रेशंस बोलते हैं। तो जस्ट लाइक कि वी मेक देम विजुलाइज कि अगर आपके घर में कोई आ रहा है और वहाँ उनको रोकने के लिए आपके गार्ड्स हैं और उनके पास गन्स हैं, तो व्हाट वी शुड डू, क्या करें? तो बोले उनकी गन्स ले लो, है नहीं, और उनको बार बार ये विजुलाइज कराओ कि नहीं ये अपने हैं, ये हमें नुकसान नहीं करेंगे। तो इस तरह से करके हमने वो एक्सप्लेन किया। अगर उसके साथ में अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो उसको कैसे, तो अच्छा आपने इम्यूनोसप्रेशन कर दिया तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स हम देते हैं और कुछ अलग अलग तरह की थेरेपीज़ करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमने सिंपल लैंग्वेज में उनको बताने की कोशिश। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि पूरी जर्नी थ्रू आउट फैमिली को ये लगा कि हाँ यार हमें सब सिंपल लैंग्वेज में बताया जा रहा है, तो दे वर सो क्वाइट हेल्पफुल। ये ट्रांसप्लांट जर्नी में ये था ना कि हम लोगों को रेस्ट 3 ऑफ अस, हम लोग को ना एक्सप्लेनेशन का कुछ हमला नहीं लेना पड़ा। ये कुलदीप सर की कहानियाँ और कुलदीप सर के नोट्स, ये बड़े ही कमाल चीज़ थे। डॉक्टर संदीप इतने एनर्जेटिक, इतने मोटिवेटिंग है कि उनके कुछ शब्द ही हमारे लिए इतने मतलब हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमने इतना बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया। सर की ही मेंटरशिप और सर का ही विजन है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब सर से आप कभी पर्सनली बात करेंगे तो 5 मिनट में वो आपको मतलब इतना मोटिवेट कर देंगे कि आपको लगेगा कि आप दुनिया जीत लेंगे। हम लोग वो जब ऑडियो क्लिप था तो हम लोग उनका चेहरा मिस कर रहे थे। बिल्कुल वी आर मिसिंग हिम टुडे। हाँ, बहुत आज वो सर होते तो आप खुद उनसे मिलते कि वो कितने एनर्जेटिक इंसान है, कितने प्रेरणा, इतनी 2 मिनट में ही आपको इतनी प्रेरणा दे सकते हैं। आपसे एक सवाल है कि हमारे मन में आ रहा था जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है तो 1 किडनी कैन बी डन, राइट? एंड लंग्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि इज इट बोथ द लंग्स? नॉर्मली मैक्सिमली बोथ लंग्स ही करते हैं, बायलैटरल करते हैं। यस, सिंगल लंग ट्रांसप्लांट में चैलेंजेस होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस होते हैं जो कि अवॉइड करना चाहते हैं इस वजह से। बट ऐसा अगर ज़रूरत पड़े तो सिंगल लंग भी करते हैं। ये बहुत ही अलग लेवल की एक्सपर्टीज़ है जो अगेन संदीप सर इज क्वाइट गुड एट है। जो इंडिया में मोस्टली वर्ल्ड वाइड है बायलैटरल लंग ट्रांसप्लांट ही करते हैं जनरली। यूनिलैटरल लंग ट्रांसप्लांट कभी मतलब बहुत ही रेयर कंट्रीज़ में होता है। जनरली मरीज़ के फेफड़े इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि बायलैटरल लंग ट्रांसप्लांट। अभी इंडिया में सिर्फ बायलैटरल लंग ट्रांसप्लांट ही हम कर रहे हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए, लंग्स डिजीज प्रिवेंट करने के लिए अभी एक प्रोग्राम था जो पटेल चेस्ट वाली कर रहे थे। मैंने पढ़ाई पटेल चेस्ट से ही की। आपने पढ़ाई, तो मैंने वो स्पायरोमीटर ट्राई करा, तो मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा था और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि मेरी कहीं हालत ये दोनों पेशेंट्स की तरह तो नहीं हो चुकी है। नहीं तो देखिए, हाउ टू प्रिवेंट दिस? थोड़ा दिल्ली एनसीआर में रहने का थोड़ा नुकसान तो है कि हमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इसके लिए हमें यही करना है कि जब पोल्यूशन है, हमें पता है अक्टूबर से जनवरी तक काफ़ी AQI हमारा हाई रहता है, तो मास्क लगाइए। दिन में जब धूप निकलती है तभी बाहर निकलें। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक्स अवॉइड करें। अपनी स्पेशली जो सांस के मरीज़ है, जिनको ऑलरेडी सांस की बीमारी है, किडनी लीवर की बीमारी, अपनी दवाइयाँ अपनी कंटिन्यू रखें। और वैक्सीनेशंस होती हैं जो हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं जो आगे बीमारियों से बचा सकते हैं। एक लास्ट सवाल है कि काफ़ी डिजीज़ को बोलते हैं जेनेटिक, तो इन पेशेंट्स में जो और कोई पेशेंट्स में क्या लंग से भी कोई जेनेटिक
होता है कि परिवार में? डेफिनेटली लंग्स की बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो जेनेटिक होती हैं, स्पेशली वो चाइल्डहुड में हो जाती हैं, लेकिन आफ्टर इवन मिडिल चाइल्डहुड जैसे 20 से 40 साल की उम्र में और लेट स्टेज में भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो जेनेटिक हैं, बहुत सारी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, एंड आर्टेमिस टीम को बहुत बहुत बधाई। भारत के अंदर एक बहुत बड़ी बात है ऑर्गन डोनेशन आज के युग में एक चुनौती है। हम डॉक्टर श्वेता जी से बात करेंगे किस प्रकार किया जाता है और क्या उसकी पूरी प्रक्रिया होने वाली है, किस प्रकार। बहुत बहुत स्वागत आपका इस ऑर्गन क्या कहना है? देखिए मैं इस माध्यम के जरिए यही बताना चाहूँगी कि लंग ट्रांसप्लांट से हमें डरना नहीं है। लंग ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं है कि हम सबको ऑफर करते हैं। कुछ चुनिंदा पेशेंट्स होते हैं जो एडवांस लंग डिजीज तक स्टेज तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे दवाइयाँ असर करनी बंद कर देती हैं, पेशेंट ऑक्सीजन पर पहुंच जाता है, पेशेंट मूव नहीं कर पाता, घर पे ही सीमित रह जाता है। उन्हीं पेशेंट्स के लिए लंग ट्रांसप्लांट ऑफर किया जाता है। और लंग ट्रांसप्लांट अगर हम देखें ये बहुत कारगर है। अगर हम 1 ईयर पे सक्सेस रेट देखें तो 85 to 90% है, और 5 ईयर अगर हम सर्वाइवल देखें तो 70% के अराउंड है। तो लंग ट्रांसप्लांट एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑप्शन है, लाइफ सेविंग ऑप्शन है उन मरीजों के लिए जिनके पास आगे कोई होप नहीं बची है, जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। और सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ के लिए एम्फेसाइज करना चाहूँगी ऑर्गन डोनेशन। हमारे यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन, जब तक हमें ऑर्गन नहीं मिलेगा हम मरीजों को नहीं डाल पाएंगे। तो हमें 2 चीज़ों का स्टिग्मा दूर करना है, एक तो ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आना है, और दूसरा जिन मरीजों को वाकई में लंग ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, अगर आपके कुछ भी सवाल है, कोई भी डर है, तो आप हमारे पास आए, क्लियर करें। क्योंकि जितनी जल्दी आप अगर आप कैंडिडेट हैं तो जितनी जल्दी आप लंग ट्रांसप्लांट कराएंगे आपका आउटकम भी उतना जल्दी होगा। अगर आप ऑलरेडी 15 लीटर पे आ गई हैं, वेंटिलेटर पे आ गई हैं, तो लंग ट्रांसप्लांट करने का सक्सेस रेट उतना ही कम हो जाएगा। तो जैसे ही आपके फिजिशियन, आपके पल्मोनोलॉजिस्ट आपको लंग ट्रांसप्लांट की ऑप्शन देते हैं, आपके कोई भी डाउट है आप हमारे पास आएँ, अपनी क्लियर करें, देन वी कैन आपको हम आगे बता सकते हैं कि आपको वाकई में ज़रूरत है कि नहीं।